Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about factor affecting the resting membrane potential, and also we discuss about the action membrane potential for class 2nd year biology. First we discuss about the learning objective. Today we have to discuss about the resting membrane potential, and in which we discuss about their factor affecting the resting membrane potential. In factors we have to discuss about negatively charged molecules and leakage of potassium ion, how they affect the resting membrane potential, and also discuss about the active or action membrane potential. Now today first we discuss about what is the resting membrane potential. In our previous lecture we also defined that what is the resting membrane potential. It is the membrane potential when the nerve impulse is not conducting through neuron, and it can be technically defined as when the outside of the neuron membrane become more positive charge while inside the neuron membrane become more negatively charged. This is the outside this is the neuron membrane. Inside they get the negatively charged, more negatively charged, and outside they get the more positive charge, and their potential difference is about minus 70 millivolt. Today we have to discuss about the factor affecting the resting membrane potential. In our previous lecture we have discussed about the movement of ion, that is sodium potassium pump, how they can move and affect the resting membrane potential and build the more negative charge inside and more positive charge outside the membrane. So today we have to discuss other factors. These are negatively charged molecules and leakage of the potassium ion. So first we discuss about the negatively charged molecules. In the membrane, neural membrane, there are large number of negatively charged molecules or particles are present. For example, DNA, RNA, proteins, negatively charged amino acids, ions. These negatively charged molecules are responsible for causing inside more negative and outside more positive, which is responsible for the resting membrane potential. हमने पहले भी डेफिनेशन में, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये डिफाइन किया था कि जब आपके पास मोर नेगेटिव चार्ज जो है इनसाइड डेवलप हो जाए और मोर पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड डेवलप हो जाए, तो जो आपका पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हो जाती है. और इसके फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल्स कौन से हैं, उनमें से सबसे पहला फैक्टर तो ये था कि मूवमेंट ऑफ आइंस, जो इसको हमने कल डिफाइन किया था, जिसमें हमने सोडियम पोटाशियम पंप का जिक्र किया था और उसके बारे में पढ़ा था. आज जो है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स में जो आपके पास न्यूरल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट हैं, जिसमें डिफरेंट प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स आइंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से भी जो इनसाइड है वो मोर नेगेटिव हो जाती है एज कम्पेयर टू द आउटसाइड, और आउटसाइड जो है वो मोर पॉजिटिव होती है, एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अब थर्ड इसका जो फैक्टर है वो है लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन. न्यूरल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ आयंस एक्सेप्ट पोटेशियम आयन. जब आपके पास तकरीबन जितने भी आयंस मौजूद हैं वो इम्परमिएबल हैं, वो मूव इनसाइड से आउटसाइड नहीं कर सकते, वो इम्परमिएबल है, न्यूरल मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है, उनको मूव नहीं करने देती है एक्सेप्ट पोटेशियम आयन के. जब क्या होता है, देयर आर स्पेशल गेट्स आर प्रेजेंट. दिस गेट्स आर कॉल्ड नॉन वोल्टेज रेगुलेटिंग पोटेशियम गेट्स which are responsible for the diffusion of potassium ion from inside to the outside. जब पोटाशियम आयन मूव करेगा इनसाइड से आउटसाइड की तरफ, which are responsible for causing the negative charge more inside and it causes outside more positive charge. और हमने टेक्निकली ये डिफाइन किया हुआ है, when it develop the more negative charge inside and it causes more positive charge on outside, they are responsible for making the resting membrane potential.
जब भी आपके पास एक न्यूरल मेम्ब्रेन के अंदर जो है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए, तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है वो आपके कौन सी मेम्ब्रेन का बनेगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का बनेगा। और इस वजह से क्या हुआ, जब लिखी जो पोटेशियम आयन होती है तो उसकी वजह से भी जो है नेगेटिव चार्ज इन साइड ज़्यादा हो जाता है और आउट साइड पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपके पास जो नर्व इम्पल्स की जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनेगा वो किसका होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का होगा। तो हमने अभी तक जो डिस्कस की है अपने प्रीवियस लेक्चर में भी और जो आज का भी हमारा लेक्चर है उसमें हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, और उसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि कैसे जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो नर्व इम्पल्स है उसके अंदर जो दो टाइप्स की आपके पास मेम्ब्रेन बनती है, जिनमें से एक को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं और एक को एक्शन या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, ये कैसे डेवलप होती है। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो आपने हमेशा याद रखनी है कि नॉन कंडक्टिंग स्टेट में बनेगी, और उसकी जो डेफिनेशन है या उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, व्हेन द न्यूरल मेम्ब्रेन मोर नेगेटिव चार्ज इनसाइड एंड मोर पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम आउटसाइड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और उसके लिए जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं वो 3 फैक्टर्स थे, कौन कौन से, मूवमेंट ऑफ आयन, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स एंड लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन। तो ये तो था हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में। अब हम लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन को फर्दर डिस्कस करते हैं कि क्या होता है कि आपके पास ये आउटसाइड है, आउटसाइड पे क्या आपके पास जब पोटेशियम आयंस ये आपके पास नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स हैं पोटेशियम आयन के, जो क्या कर रहे हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल क्या होंगे, ये जब चैनल्स क्या करेंगे पोटेशियम आयन को लीक करेंगे आउटसाइड पे, किधर लीक कर रहे हैं, आउटसाइड पे लीक करेंगे, तो आपके पास अंदर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा और बाहर की साइड का डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये तो था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में। अब हम जो है वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल एस्टैब्लिश अक्रॉस द न्यूरल मेम्ब्रेन व्हेन द नर्व इम्पल्स इज कंडक्टेड थ्रू द न्यूरॉन। जब आपके पास न्यूरल मेम्ब्रेन से जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल करें, वो चार्जेस की सूरत में ट्रैवल करती हैं और मैसेज को कंडक्ट करें, ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलेंगे। इन दिस एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल चार्जेस आर रिवर्स्ड। जो अब हमने आपको अगर हमने प्रीवियस लेक्चर में भी और आज के भी लेक्चर में ये बात हमने डिस्कस की है कि जब इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज मौजूद हो और आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो तो वो हमारे पास कौन सी मेम्ब्रेन है, वो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब यही चार्जेस क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। जब ये चार्जेस रिवर्स हो जाए, रिवर्स से क्या मतलब है कि अब मोर पॉजिटिव जो होगा वो इनसाइड हो जाएंगे और मोर नेगेटिव की साइड हो जाएंगे, आउटसाइड द मेम्ब्रेन हो जाएंगे, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो चार्जेस हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, और जो आपकी जो न्यूरल मेम्ब्रेन में जो चार्जेस हैं वो कैसे हो जाएंगे कि नेगेटिव आपके आउटसाइड पे क्या है, मोर नेगेटिव हो जाएगा और इनसाइड पे मोर पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग द एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एंड द वैल्यू ऑफ द एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस आते हैं इनके दरमियान, और उसकी जो वैल्यू है वो 0.05 वोल्ट है, या हम इसे पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट भी कहते हैं। तो ये तो था किसके बारे में, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। अब ये डेवलप कैसे होती है आपके पास न्यूरल मेम्ब्रेन में, ये हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं। ये आपके पास ये मैंने डायग्राम बनाई है, तो इस डायग्राम से आप अगर देखें लगेगा न्यूरल मेम्ब्रेन है, ये न्यूरल मेम्ब्रेन के अंदर अगर मैं ये कंडीशन रखूँ तो जो मैंने पहली कंडीशन रखी है, तो ये आपको प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बार बार बताया है, और इस लेक्चर में भी मैंने बताया कि जब मोर नेगेटिव चार्ज इनसाइड है और मोर पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड है तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है क्या होगा कि चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे। अगर आप देखें वाले फिर इसके बाद ये फर्दर सम जो है ये डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि अब देखें यहाँ पे बाहर आउटसाइड पे क्या थे, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, इनसाइड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब जब आपके पास नर्व इम्पल्स
जो है वो क्या हुई है, ट्रैवल होने लगे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, न्यूरॉन जो है वो मैसेज कंडक्ट करने लगे हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो न्यूरॉन, आपका न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, और न्यूरॉन के अंदर जो अब जो अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो गया, बाहर की तरफ मोर नेगेटिव हो गया और अंदर की तरफ मोर पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होती है कि अब जब चार्जेस रिवर्स्ड हो जाए, चार्जेस क्या हो गए आपके इधर रिवर्स्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से अब ये जो आपके पास हिस्सा खिलाया हुआ है किसका हो जाएगा, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन पोटेंशियल का हिस्सा बन जाएगा। ये क्या करेगा, अब ये आप याद रखिए कि क्या हुआ, जब यहाँ से ये चार्ज इधर रिवर्स यूँ आपके पास क्या होता है, मतलब यहाँ पे देखें ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो गए, यहाँ पर फिर दोबारा यहाँ पे ऊपर नेगेटिव होते जा रहे हैं, नीचे पॉजिटिव होते जा रहे हैं, इस तरह ये ट्रैवल करता जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर आउटसाइड पे नेगेटिव हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसी तरह आपके पास क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये जो आपका नेगेटिव है यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव और अंदर की तरफ पॉजिटिव। तो इस तरह क्या होते जा रही है, देखिए आप पहले फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप के अंदर क्या हुआ कि चार्जेस रिवर्स हुए, ये मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। ये पहले इधर आपके पास ये मैसेज यहाँ तक न्यूरल में ट्रांसफर हुआ, फिर इधर से इसने आगे मैसेज को कन्वे किया और उन्होंने चार्जेस को रिवर्स किया, ये देखिए आगे चार्जेस रिवर्स होते जा रहे हैं। फिर इसी तरह इसने आगे मैसेज को कन्वे किया और उसी तरह चार्जेस क्या होते जा रहे हैं, रिवर्स होते जा रहे हैं, और जो आउटसाइड है वो मोर नेगेटिव होती जा रही है और इनसाइड मोर पॉजिटिव होती जा रही है, जिसकी वजह से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इट कन्वर्ट्स इनटू द एक्टिव या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करेगी। और ये मैंने एरो बनाया है, तो एरो आपको क्या शो कर रहा है कि ये रिवर्स आपके जो हो रहे हैं, ये जो चार्जेस आपके रिवर्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है कि आपके जो मैसेज है वो आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है, थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू वो आगे ट्रैवल कर रहा है, और न्यूरॉन से आपके क्या होगा कि वो मैसेज ट्रैवल किया जाएगा और उसके बाद उस मैसेज को जो है ब्रेन इंटरप्रेट करेगा और उसके मुताबिक जो है आपके फैक्टर्स जो है वो वर्क करेंगे। तो इस तरह आपकी बॉडी के अंदर न्यूरल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, आपके पास मैसेज ट्रैवल होता है और उसमें दो टाइप होती है। नर्व इम्पल्स में आपकी दो जो है मेम्ब्रेन डेवलप होती है, कौन सी, एक हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं जो नॉन कंडक्टिंग है, जब वो कंडक्टिंग होती है, देखें ये क्या नॉन कंडक्टिंग स्टेज पे है। और दूसरी कौन सी होती है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब मैसेज को कन्वे किया जाता है तो आगे पास किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलेंगे। और इस तरह आपके पास क्या होता है कि पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ इस हिस्से में क्या होगा रिवर्सल होगी, फिर उसके बाद फिर फर्दर जो है ये आगे जब मूव करेगी तो फिर वो फिर दोबारा रिवर्सल कर देंगे चार्जेस को, और फर्दर ऑन इस तरह रिवर्सल चार्जेस होते जाएंगे और क्या होगा जो मैसेज है वो आगे ट्रैवल करता जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। अब इधर एक क्वेश्चन राइज होता है, हाउ द एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टार्ट्स, कैसे जो है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट होगी, या हम ये कह सकते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज कैसे आएगी। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको स्टिमुलस चाहिए होता है। तो क्या अब हम इसको स्टिमुलस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, a new stimulus which is responsible for changing the resting memory potential into active memory potential is called threshold stimulus। मतलब हमें थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस चाहिए जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इट कन्वर्ट्स इनटू द एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे कन्वर्ट हो जाएगी एंड दिस स्टिमुलस इज कॉल्ड द थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। अब एक और क्वेश्चन आता है, अगर तो स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग है फिर क्या होता है, अगर आपके पास स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग नहीं है फिर क्या है, अ स्टिमुलस व्हिच इज वीक एंड हैज लेस स्ट्रेंथ देन द थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। अगर आपके पास ये थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस है जिसने क्या किया, नर्व कंडक्ट कर रहा है, ये जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट कर रहा है, अगर इससे कम है, आपके पास जो थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस से कम रहा है, एक ऐसा स्टिमुलस है जो वीक है और वो क्या लेस स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू द जो थ्रेशहोल्ड जो वैल्यू है कि जनरेट कर सके, तो उससे अगर कम आपके पास अगर स्टिमुलस मौजूद है तो वो क्या करेगा, जो जारी बात है वो आगे मैसेज को कन्वे नहीं करेगा। ऐसे स्टिमुलस को हम क्या बोलते हैं, इनएडिक्वेट स्टिमुलस या सब थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
A stimulus which is weak and has less strength than the threshold stimulus is called subthreshold stimulus or inadequate stimulus. जो आपकी चेयर नहीं ला पा रहा, ऐसा स्टिमुलस जो चेयर नहीं ला पा रहा, जो वीक है, लेस स्ट्रेंथ है उसकी एज कम्पेयर टू द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ऐसे स्टिमुलस को हम क्या बोलते हैं? सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस या इनएडिक्वेट स्टिमुलस. तो आज तो हमने जो है डेफिनेशन पढ़ी है कि एक्शन या एक्टिव मेमोरी पोटेंशियल कैसे जनरेट होती है और कैसे मैसेज को ट्रैवल करती है. नेक्स्ट टाइम हम जो है फैक्टर इफेक्टिंग एक्शन मेमोरी पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.